all the hormones which we have discussed, now they are being produced recombinantly. But I cannot go into the detail of everyone, and you can go to the textbooks and basically look at each and every one of them in greater detail. But I would like to give you a base level, and that is, we discussed glucagon and humulin, जो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड हार्मोन्स थे, जो अल्टीमेटली जो एलाई लिली एक कंपनी थी, हम बार बार देखते थे कि वो इकोलाई सिस्टम में प्रोड्यूस कर रही थी, और जो नोवो नॉर्डिस्क थी उसने एक यीस्ट सिस्टम बनाया हुआ था. बट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट follicle stimulating hormone या other gonadotrophins, these are what we call glycoproteins. तो इनके इर्द गिर्द एक ह्यूज शुगर का शेल है, और वो जो शुगर का शेल है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्रोड्यूस, कि वो इतने आराम से रेप्लिकेट नहीं होता. लेट्स लुक एट follicle stimulating hormone. So it stimulates the growth of ovarian follicle, अभी हम देख चुके हैं. But this is more interesting. Now we are only going to discuss the molecule. So its half-life is 180 to 240 minutes, which is not huge. And it stimulates production of luteinizing hormone receptors and other factors for the preparation of ovulation. It's a glycoprotein जो 34 kilodalton long है. It's a heterodimer and it consists of two polypeptide units, alpha and beta. But the interesting part, as I said earlier, was the oligosaccharide shell जो उसके इर्द गिर्द है. And these oligosaccharide components play a direct and central role in the biosynthesis, secretion, serum half-life, and potency of the gonadotrophins. The sugar components attached to the alpha subunit play an important role in the dimer assembly. तो अगर आप उस शुगर शेल को निकाल दें तो जो डाइमर है वो असेंबल नहीं हो सकता. It remains as a monomer, and ultimately not only like assembly but also the stability as well as hormone secretion and possibly signal transduction. इस वक्त अगर मैं आपसे कहूं कि एक और भी बहुत ज्यादा एक ऐसी प्रोटीन है जो हम प्रोड्यूस करते हैं, which is also a glycoprotein, those are antibodies. So antibodies are usually also glycosylated, and this is a key challenge at the moment in the antibody production, कि how to continuously regulate the production of sugar moieties around them successfully, कि उनकी antigenicity affect ना हो. In terms of its gene structure, it is very very interesting. जो alpha subunit gene है, it has 4 exons which are present on chromosome 6. And the beta gene on the other hand is not present on the chromosome 6, it's present on chromosome 11. But जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो mRNA इनको कोड कर रहा होता है वो both subunits को separately translate करता है. And when it translates it, ultimately उनका सिग्नल रिमूव होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एंड अल्टीमेटली जो इसमें ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है कि जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स हैं वो अलग अलग प्रोड्यूस होके अलग से रिलीज होके देन कंबाइन करते हैं टू मेक दिस हार्मोन. यूजुअली क्या होता है कि अगर प्रोटीन्स हो तो अल्टीमेटली वो एक ही जगह पर असेंबल हो जाती हैं और अलग अलग स्टोर नहीं होती. एंड N-linked glycosylation इसमें है instead of O-linked, and intra-chain disulfide bond formation also happens. अगर कोई free alpha subunits are found within the pituitary and few beta subunits जो भी unassociate form में हो और वो ना मिलें तो ultimately वो beta subunits degrade हो जाते हैं. This particular hormone displays N-linked glycosylation, I have told you before, जिसमें asparagine involved होती है, और जो sites हैं वो हैं asparagine 52 and 78 for alpha subunit and asparagine 7 and 24 for beta subunit. We have already seen कि females के अंदर ये क्या रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसमें जो एक चीज आपको अंडरस्टैंड करने की है फ्रॉम बायोटेक परस्पेक्टिव, कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है जिसको आप माइटोजेनिक रोल कह सकते हैं.
माइटोजेनिक रोल का क्या मतलब है कि वो बेसिकली सेल्स को प्रोलिफरेट करने की इजाजत देता है. नाउ हम लोगों ने इंसुलिन में भी वेरी रिसेंट इस किस्म का रोल आइडेंटिफाई किया है कि अल्टीमेटली इंसुलिन भी सेम सॉर्ट ऑफ रोल प्ले करता है. और ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी सीन के फॉलिकुलर डेवलपमेंट में भी ये माइटोजेनिक रोल प्ले कर रहा है कि अगर आपका जो थीका सेल्स था या फॉलिकल था वो 5 मिलीमीटर का था, तो अल्टीमेटली ड्यू टू द अफेक्ट ऑफ FSH इट कीप्स एंड मैच्योर्स ओवर द पीरियड टू अल्टीमेटली 25 मिलीमीटर इन लेंथ. लेकिन ये जो इसकी इंक्रीज हुआ है, ये क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ माइटोजेनिक एक्टिविटी, सेल की तादाद ज्यादा हो रही है. Urine of postmenopausal women contain FSH and LH activity and it serve as a major source for medical uses. तो बायोटेक्नोलॉजी के एडवेंट से पहले बेसिकली यू यूज टू टेक दीज हार्मोन्स फ्रॉम पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन का आपको यूरिन कलेक्ट करना पड़ता था. एंड इन फीमेल्स वी कॉल देम मीनोट्रोफिन्स एंड HCG. इन तमाम हार्मोन्स को हम मिला के मीनोट्रोफिन्स कहते हैं. एंड HCG आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनोवुलेटरी इनफर्टिलिटी. तो ये जो इनफर्टिलिटी कॉज होती है ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर ओव्यूलेशन, ये करेक्ट की जाती है बाय बेसिकली कलेक्टिंग द यूरिन, और उससे अल्टीमेटली आप FSH एंड LH आइसोलेट करके वो उन पेशेंट्स को देते हैं. इन अ सेपरेट टॉपिक वी विल डिस्कस कि बायोटेक ने इसमें आके क्या चेंज लाया है और इन हार्मोन्स का क्या फर्दर थेराप्यूटिक यूज है.